السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ سماجی، سیاسی و معاشی گھر گھر سروے کرانے کی قرارداد ایوان میں منظور۔ گزشتہ جامع سروے کی رپورٹ ایک خاندان کے ہاتھ میں، ہم اس کو منظر عام پر لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا ایوان میں اعلان۔ قرارداد نہیں، بل پیش کریں تبھی یہ ممکن ہے، ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایوان میں اپوزیشن جماعتوں نے کی قرارداد کی تائید۔ ہم کسی کے دم چھلے بن کر نہیں رہیں گے، نہروں سے لے کر اب ہر ایک کو آزمایا ہے، مسلمان جدوجہد کر کے اپنا حق حاصل کریں گے۔ اکبر اویسی کی جذباتی تقریر۔ سید عظمت اللہ حسینی وقف بورڈ کے نئے صدر نشین، متفقہ انتخاب کے بعد جائزہ حاصل کر لیا۔ اور اکبر باغ ڈکیتی کیس کے تینوں ملزمین گرفتار، 24 لاکھ روپے مالیت کی زیورات ضبط، اندرون چند گھنٹے پولیس کی کارروائی۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ beside رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپوزیشن عوام کو شک و شبہات میں ڈال رہی ہے۔ ایوان اسمبلی میں سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر پچھڑے طبقات کی ذات پات کی مردم شماری گھر گھر کی جائے گی۔ اس قرارداد کو متفقہ طور پر ایوان میں قبول کر لیا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ UPA حکومت نے سچر کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کے ذریعے اقلیتوں کو فائدہ پہنچایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے قرارداد پیش کی ہے، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ گھر گھر سروے کیا جائے گا۔ ماضی میں اس طرح کا سروے کیا گیا تھا، لیکن اس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ اس کو ایک خاندان نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر انتخابات کے وقت اسے استعمال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس قرارداد پر شک کرنے کی ضرورت نہیں،
इस पर अमलावरी के लिए कोई कानूनी पेचीदगियां पैदा ना हो, इसके लिए अपोजिशन मुफीद मशवरे दे। इन्होंने कहा कि एक तारीखी करारदाद के वक्त अपोजिशन लीडरान ऐवान में मौजूद नहीं हैं। इन्होंने कहा कि किसी के मुतालबे पर यह करारदाद पेश नहीं की गई, हुकूमत ने खुद इसको पेश किया है। अगर बीसी के लिए मंशूर में जो वादे किए गए हैं इस पर बहस करना है तो इसके लिए बहस करने तैयार हैं। इन्होंने कहा कि 0.5% आबादी वालों को खौफ पैदा हो गया है कि उनके हाथ से सब चला जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछड़े तबकात को मुस्तहकम करने और हुक्मरान बनाना ही इस करारदाद का मकसद है। बीआरएस पार्टी ने भी करारदाद की तायीद की है। मुबाहिस में केटीआर ने हिस्सा लेते हुए कहा है कि ऐवान में करारदाद पेश करने से कोई फायदा नहीं, बिल पेश करने पर कामयाब होगा। केटीआर ने 2004 में 17 दिसंबर को केसीआर ने एक वफ्द के साथ उस वक्त के वज़ीर आज़म से मुलाकात करके इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। हर रियासत में बीसी महकमा मौजूद है, मरकजी सतह पर ओबीसी वजारत कायम करें। केटीआर ने कहा है कि मनमोहन सिंह और मौजूदा हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज कर दिया था। इन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी में केसीआर ने अहम रोल अदा किया। तेलंगाना तश्कील के बाद भी केसीआर ने इस सिलसिले में करारदाद पेश की और मरकज को मकतूब लिखा। मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा है कि असेंबली में जामे ख़ानदानी सर्वे और ज़ात पात की मरदूमशुमारी के लिए करारदाद पेश करने के बजाय बिल पेश किया जाना चाहिए। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 6 गारंटियों पर करारदाद पेश करेगी। इलेक्शन से पहले किया गया वादा है। वज़ीर आला ने जो सच्चर कमेटी का हवाला दिया है वो सिर्फ फैक्ट एंड फंडिंग कमेटी है। इन्होंने कहा है कि इस करारदाद में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि अक़लियतों को शामिल किया जाएगा या नहीं। इन्होंने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी के बाद अक़लियती बहबूद महकमे अक़लियती कमीशन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन बनाया गया था। इन्होंने कहा है कि दीगर पिछड़े तबकात को चाहिए कि वो अक़लियतों की तरक्की की बात करें। अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा कि इस इजलास में कुल जमाती इजलास तलब करके मुख्तसर मुबाहिस में अपोजिशन के मशवरे लिए जाएं, इसके बाद हुकूमत बिल पेश करे तो बेहतर होगा। मजलिस इस करारदाद की मुकम्मल तायीद करती है। मोहतरम पैनल स्पीकर सर, मेरी पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हुकूमत की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया है कास्ट सर्वे का, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इंतखाबात के वक्त जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा करने के लिए, तो मेरी जमात की जानिब से इस रेजोल्यूशन की तायीद करता हूं। लेकिन तायीद करने से पहले चंद हक़ाइक़ को भी इस ऐवान में पेश करना चाहता हूं और इस ऐवान के ज़रिए आवाम तक भी पहुंचाना चाहता हूं। और ये बात यह है कि मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों की कमज़ोरी और मुसलमानों की पिछड़ेपन को कई कमीशनों ने और कई कमेटियों ने पेश किया और बयान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत वो मुसलमान हैं। मैं यहां खड़े होकर बीसीस के पसमानदगी के बारे में मुकम्मल तायीद करूंगा और उनको जितना भी जो भी देना है हुकूमत दे, मैं बहैसियत मुसलमान उसकी तायीद करूंगा। एससी और एसटीज को जो भी हुकूमतें देना चाहती हैं दे सकती हैं, जितना भी देना
चाहती हैं दें, मैं अपनी पार्टी के जानिब से उसका खैर मुक़द्दम करूंगा, उसकी तायीद करूंगा। चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो माशी बदहाली को दूर करने के लिए, इस्तेहकाम बख्शने के लिए अगर कोई फंड्स एलोकेट किए जाते हैं तो उसकी भी तायीद करूंगा। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं मेरी रियासत व हिंदुस्तान के आलाजात के लोगों से, पसमानदा तबकात के लोगों से, बीसीज और एससीज व एसटीज से यह अपील करूंगा कि आप हमारी पसमानदगी पर भी नजर डालें, हमारी कमजोरी पर भी नजर डालें, हमारे पिछड़ेपन पे भी नजर डालें, और जिस फराख दिली के साथ हमने आपकी तायीद का ऐलान किया, आप भी हमारी पसमानदगी, हमारे पिछड़ेपन, हमारी कमजोरी को दूर करने के लिए उसकी भी तायीद करें और मशवरे दें। बीजेपी के रुकन असेंबली पायल शंकर ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के दौर में बीसीई मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए। इस पर एतराज़ करने के बावजूद उस वक्त कांग्रेस हुकूमत से यह तयक़ुन दिलाया गया था कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में कमी नहीं होगी। अदालत में हुक्म इल्तिवा लेते हुए बीसी तबके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इन्होंने इस करारदाद की तायीद करते हुए कहा है कि इसका कोई कानूनी इख्तियार नहीं। पायल शंकर ने अयोध्या में राम मंदिर और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर जो एतराज़ किया गया है, इस पर पूरे ऐवान को मजम्मत करनी चाहिए, इन्होंने कहा। मजलिस के कायद मुकर्रर अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत होने के बावजूद मुसलमान पसमानदा हैं। ऐवान असेंबली में खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि पुलिस एक्शन के बाद मुसलमान तबाह व बर्बाद हो गया। इन्होंने कहा कि जब भी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई जाती है, हमको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, जबकि कोई तबका अपने हक़ की आवाज़ उठाता है तो इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। 1950 से असेंबली में मुसलमानों के हक़ में जद्दोजहद कर रहे हैं। नेहरू से लेकर हर एक को आजमाया है, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए हम किसी के दुम छल्ले बनकर नहीं रहना चाहते, अपने बलबूते पर हक़ हासिल करेंगे। 10 साल से 12% तहफ़्फ़ुज़ात ना देने की कांग्रेस पार्टी तशहीर करती रही। कांग्रेस पार्टी 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का ऐलान करे, पूरे मुसलमान आपके साथ हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद शहादत के जिम्मेदार कौन हैं, हम नहीं भूले। हम पर ज़र्ब लगाने वालों को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान के आज़ादी से लेकर आज की तारीख तक मुसलमानों ने हर एक का साथ दिया। मुसलमानों ने कभी नेहरू का साथ दिया, तो कभी लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी जनता पार्टी के नाम पर मोरारजी देसाई का साथ दिया, तो मुसलमानों ने नेशनल फ्रंट के नाम पे वीपी सिंह का साथ दिया, तो आई के गुजराल का साथ दिया, और फिर चंद्रशेखर साहब का साथ दिया। और उसके बाद मुसलमानों ने हिंदुस्तान में कभी कांग्रेस को आजमाया, यह समझ कर के हमारी पसमानदगी दूर होगी, हमारी कमजोरी दूर होगी। तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, यह समझकर कि हमारी पसमानदगी, हमारी कमजोरी दूर होगी। तो कभी हमने वीपी सिंह का साथ दिया, तो कभी देवेगौड़ा का साथ दिया। हमने हर एक का साथ दिया, लेकिन हमारी पसमानदगी वहीं की वहीं रही। हम पिछड़े थे, पिछड़े हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की अगर सूरत हाल है, तो रियासत में भी अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलुगु देशम का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलंगाना के तश्कील के बाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो आज भारत राष्ट्र समिति है, इसका साथ दिया। तो हमने हर एक को आजमाया, लेकिन हमारी पसमानदगी जूं की तू रही और हम वहीं के वहीं खड़े रहे। लेकिन इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं करेगा कि 1960 के दहे में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश की असेंबली में दाखिला लिया, और उसके बाद अपनी जिद्दोजहद के जरिए मुसलमानों की तालीमी, माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुसलसल नुमाइंदगी करती रही और हुकूमतों को मजबूर कराया। और उसका नतीजा यह हुआ
کہ آندھرا پردیش کی ریاست ہندوستان کی پہلی ریاست بنی جہاں پہ مائنورٹی کمیشن بنا, مائنورٹی فائنانس کارپوریشن بنا. تو یہ سب سے پہلی تھی ریاست. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کے نتیجے میں ہندوستان میں سب سے پہلے مائنورٹی ویلفیئر کی منسٹری اور مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہوا. تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپریشن پولو و پولیس سیکشن کے نام پر قلم کی ایک جنبش کے ذریعے ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا. قانون ایسے بنائے گئے کہ کبھی ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کے زمینات کو چھین لیا گیا, کبھی جاگیر ایبولیشن کے نام پہ مسلمانوں کے جاگیروں اور منصبوں کو چھین لیا گیا, تو کبھی انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے زمینات کو چھین لی گئی. ارے جو تخت تاج کا وارث تھا, جو کبھی تخت پہ بیٹھا تھا, تاج تھا اس کے سر پر, آزادی کے بعد مسلمان رکشہ ڈھکیلنے پہ مجبور ہو گیا, بنڈیوں پہ آ گیا, اس کے محلات ویران ہو گئے اور اس کے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن گئے. ایک ایسی داستان ہے مسلمانوں کی پسماندگی کی کہ اگر میں کہوں تو یہ کانگریس کے حکومت سے میں کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو دہراؤں گا کہ مولانا آزاد نے پولیس سیکشن کے بعد حیدرآباد کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا. اتنا لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں عزتیں لٹیں, عصمتیں لٹیں, ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئیں. تباہ و بربادی کے بعد آج مسلمان کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کوشش میں اگر کچھ مددگار اگر کوئی ثابت ہو سکتی ہے کوئی چیز, تو میں سمجھوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ایلوکیشن مسلمانوں کے لیے, زیادہ سے زیادہ موقع مسلمانوں کے لیے, زیادہ سے زیادہ ریزرویشن کے ذریعے مسلمانوں کو نوکری دینا, اس کے ذریعے ہی مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے. اور میں امید کروں گا, ہر کسی سے ہم نے امید لگایا لیکن ہر ایک نے ہمارے امیدوں کو چکنا چور کیا. ہم نے ہر ایک سے آس لگائی لیکن ہر ایک نے ہماری آس کو توڑا. اور آج ہم ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے اپنے مسائل کے حق کے لیے لڑتے ہیں تو ہم کو بی جے پی کا بی ٹیم کہا جاتا ہے, ہم کو ان کا نمائندہ کہا جاتا ہے. کیا ہم کو حق نہیں ہمارے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ کیا ایک ریڈی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک کما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک ویلما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک راؤ کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ اور ایک ایس سی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایس ٹی کو حق ہے لیکن حق نہیں ہے تو مسلمان کو کیوں مسلمان اپنی جدوجہد نہ کرے, اپنی پارٹی نہ بنائے, اپنے نمائندوں کو نہ جتائے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کسی ریڈی کے دم چھلے بن جائیں؟ نہیں, ہم کسی کے دم چھلے بننے تیار نہیں ہیں, نہ ریڈی کے, نہ راؤ کے, نہ کسی کے. ہم اپنے بلبوتے پہ جدوجہد کریں گے, اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اپنے حق کو حاصل کریں گے. اور وہ حق جو حق دستور نے ہم کو دیا, دستور میں ہر کسی کو برابر کا حق دیا گیا, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, ہر ایک کو برابر حق ہے. لیکن آج مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنا یہ ہے کہ آپ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں, آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں. ارے آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے, کوئی دلت کے حق کے لیے لڑتا ہے تو اس کو بی جے پی کا ایجنٹ نہیں بولا جاتا. کوئی اگر بیکورڈ کلاس کے حق کے لیے لڑتا ہے تو وہ بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوتا. لیکن ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. سر, I may be wrong, sir. I may be wrong. But as per the parliamentary practices, sir, a resolution جب موو ہوتا ہے تو کسی کو مبارکباد دینے کے لیے ریزولوشن دیا جاتا ہے, کسی کی تعزیت پہ, کنڈولنس پہ ریزولوشن ہوتا ہے, یا کسی ڈیمانڈ کے لیے ریزولوشن ہوتا ہے, یا گورنمنٹ آف انڈیا سے اگر کچھ بولنا ہے تو اس کے لیے ریزولوشن ہوتا ہے. لیکن کانگریس کے مینیفیسٹو کے پول پرومس کے لیے ریزولوشن, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, یہ مجھے سمجھائیں. ٹھیک ہے,
اگر میں یہاں کھڑے رہ کے کہتا ہوں کہ ہم ریزولوشن کی مخالفت کر رہے ہیں, ہم اس کی تائید نہیں, تو بولیں گے دیکھو یہ مجلس مسلمان یہ بی سی ریزرویشن کی مخالفت کر رہی ہے. ایسی نہیں. تو اس لیے I started by saying that کہ I support this resolution with a request to correct, have necessary corrections in this. سر بہت سیاست ہو گئی, سیاست بہت نے کھیل لیا, اور ہندوستان کی سب سے پرانی جماعت کانگریس, اور میں سمجھوں گا کہ ماسٹرز کے ماسٹرز ہیں سیاست میں. پلیز اب سیاست نہ کھیلیں. لیٹ us do something concrete سر. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 10 سال تک 12% تحفظات مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا, نہیں ملا. ٹھیک ہے نہیں ملا, لیکن اس وعدے کے خلاف کانگریس نے عوام کے سامنے اتنا کہا کہ مسلمانوں کو کیا ملا, 12% ملا, کیا ملا, کیا ملا, کیا نہیں ملا. چلو انہوں نے نہیں دیا, آپ آج اعلان کر دیں فنڈنگ کے بعد میں ہم مسلمانوں کو 12% دیتے ہیں, چلو میں بھی آپ کے ساتھ, پورا مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا. اعلان کر دیجئے, چلیے وہ بھی اعلان کر دیجئے. ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولے, ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولے. کون ذمہ دار تھے ہم یاد رکھتے ہیں, رکھیں گے. اور اس مقام پہ جہاں پہ مسجد تھی, ہے اور قیامت تک رہے گی, اس بابری مسجد کو ڈھانے والے کون تھے وہ بھی ہم کو یاد ہے, اور کن کن کو بھارت رتن سے نوازا گیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے. یہ ہے محبت مسلمانوں کے ساتھ. ہم کو ضرب لگانے والوں کو, ہم کو تکلیف دینے والوں کو, ہمارے مساجدوں کو گرانے والوں کو, ہم کو تاڑا میں ڈالنے والوں کو, ہماری عزت و عصمت کو لوٹنے والوں کو, ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں مار کر ہماری معیشت کو تباہ کرنے والوں کو بھارت رتن سے نوازا جاتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم کو, میں کسی کا نام نہیں لیا, سر گوئنگ فردر ایٹ سر, نہیں سب میں نام نہیں لیا, I'm not yielding سر. اگر میں کسی کا نام لیتا ہوں تو جب ہے تو میں یہی کہوں گا اسپیکر صاحب کہ ہم نے ہر ایک کو آزمایا ہے, لیکن ہر ایک نے ہمارا استعمال کیا ہے, ہمارا استحصال کیا ہے, اور ہم کو ڈرا کر دھمکا کر ان کا خوف دکھایا, کبھی ان کا خوف دکھایا اور اپنے سے وابستہ کیا. میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس ریزولوشن کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سچر کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹڈ بائی UPA گورنمنٹ واز اونلی اے فیکٹ فائنڈنگ سر. سچر کمیٹی واز ریفرڈ بائی آنریبل چیف منسٹر صاحب. لیٹ می کریکٹ اینڈ سے دیٹ the سچر کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹڈ بائی UPA گورنمنٹ was only a fact-finding committee like earlier Gopal Singh committee appointed by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi on the socio-economic and education status of Muslim minorities in the country. And on the other hand, the Ranganath Commission was constituted under the Commission of Inquiry Act to suggest the reservation for religious minorities in the country. So there is a difference between Sachar Committee and Ranganath Commission, because that is a commission and this was only a recommending authority, sir. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا سر کہ who will conduct the caste based survey sir. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مسلم مائنورٹیز کے بارے میں بھی کیا آپ اس کاسٹ سروے میں لیں گے یا نہیں لیں گے. It is not mentioned here, sir. یہ ریزولوشن میں SC, STs اور BCs کے بارے میں کہا گیا, تو کیا آپ مسلمان کو بھی اس ریزرویشن میں لیں گے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی پسماندگی کو بھی دیکھیں گے, اور میں آپ سے سر ریکویسٹ کروں گا, حکومت سے ریکویسٹ کروں گا to appoint one member belongs to anthological economy expert and data expert in the survey committee, sir. This is also very important, sir. اگر یہ دو لوگ رہیں گے تو اس سے ہوگا. اینڈ سر میں پھر سے آخر میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ اور ریکویسٹ کروں گا
कि गवर्नमेंट to bring the bill in the house for the conduct of caste survey in a proper manner and thereafter initiate a follow-up action on its findings, sir. और मैं फिर से कहूंगा कि मुसलमान बड़ी उम्मीद के साथ आज भी खड़ा है इस दस्तूर के ताबे रहते हुए, इस दस्तूर में दिए गए हुकूक को हासिल करने के लिए दस्तूरी जिद्दोजहद कर रहा है और हर एक से उम्मीद लगाया खड़ा है कि हमसे इंसाफ होगा, हमको हक मिलेगा। हम आज भीख नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ दस्तूर में दिए गए हुकूक और हक को मांगते हैं और मुसलमानों को भी वो ड्यू शेयर, वो ड्यू रिस्पेक्ट देने का मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी, मुसलमानों को उनका हक देगी और दस्तूर में जो हुकूक अक़लियतों को दिए गए हैं वो हुकूक के जरिए मुसलमानों की और अक़लियतों की पसमानदगी को दूर करेगी। स्पीकर साहब, आपने जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने ऐवान असेंबली में कहा है कि रात 1 बजे तक बाजार खुले रखने की इजाज़त दी जाए। इन्होंने कहा है कि अवाम तब्दीली चाहती है, इसलिए वक्त को भी तब्दील किया जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हो रही नाइंसाफियों पर भी इन्होंने तवज्जो दिलाई। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चा कुंडा के अंदर एक ज़माने से हैदराबाद की रिवायत रही है, वो रिवायत का सबूत खुद हमारी असेंबली है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर असेंबली सुबह 8 बजे चालू होती, हमारे यहाँ 10 बजे चालू होती। तो हमारे पास हैदराबाद में लोगों को रात में जागने की, सुबह देर तक सोने की आदत है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि ये तीनों साइबराबाद, रच्चा कुंडा, हैदराबाद के अंदर रात में 11 बजते ही होटलों को बहुत सख्ती के साथ बंद करा दिया जा रहा है। तो उसका पहले 1 बजे तक खुले रहते थे, तो लोगों को और तकरीबन रात में काम करने वाले लोगों को भी उसमें तनख्वाह मिलती है, रोज़गार मिलता है और बहुत ज़्यादा पुलिस की सख्ती हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ये जैसे ही रिजीम चेंज हुआ, एवरीबडी हैज़ फील द चेंज, नाउ द टाइमिंग कैन बी चेंज। हमारे मिनिस्टर साहब, तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत के आपके ज़रिए आपसे गुजारिश करूँगा कि रात में 1 बजे तक टाइम दिया जाए। उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और उसके साथ मैं ये भी कहूँगा साहब कि ये कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको जोन वाइज जब तक डिवाइड नहीं किया जाएगा, ये लोग नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं। उसके ऊपर भी आप जल्दी अगर से आप कोई कार्रवाई करें तो उनको भी राहत मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर। बहादुरपुरा के रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन ने कहा है कि पुराने शहर में मिनी बस चलाई जाए। इन्होंने कहा है कि कई रूट्स भी बसें नहीं चलाई जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, पहली बार ऐवान असेंबली के अंदर मौका मिला है आने का। मैं हमारे पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कायद ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्का असेंबली बहादुरपुरे में आरटीसी का इतना बड़ा फ़लकनुमा बस डिपो है, उसके बावजूद भी हमारे हल्के के अंदर मिनी बसेस हो या कोई बड़ी बस वहाँ पर नहीं चलाई जाती। जो तीगलकुंटे से लेकर चार मीनार तक और चार मीनार से लेकर सेक्रेटेरिएट तक, और जिस तरीके से हसन नगर, अंसारी रोड, मुस्तफ़ा नगर और दीगर इलाके जात के अंदर छोटे छोटे गलियां हैं, उसके बावजूद भी मिनी बसेस को वहां पर नहीं चलाया जा रहा है। और चार मीनार से लेकर मधुबन और चार मीनार से लेकर वट्टापल्ली तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो बसेस है वहाँ पर चलाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास एक ITI का बहुत बड़ा कॉलेज है ओल्ड सिटी का और पॉलिटेक्निक है। कई बच्चे ज़ू पार्क से वहाँ पर पैदल आते हैं, चार मीनार ज़ू पार्क पर उतरते हैं, वहाँ से रोड क्रॉस कर वो लोग कॉलेज को आना पड़ता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर आप गौर करें और साथ ही साथ इन बसों को चलाया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया।
मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा है कि उनके हल्के के इस्तलम इलाकों में आलूदा पानी की सरबराही हो रही है। सड़कों पर सीवरेज का पानी बह रहा है। रमज़ान के महीने में सफाई होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हल्के कारवान के अंदर जो वाटरवर्क्स की जानिब से जो 7 सेक्शन हुआ करते थे, जिसके अंदर आज मौजूदा पिछले 1 महीने से जो मैनेजर्स होते हैं सेक्शन के, वो 3 मैनेजर हो चुके हैं। और ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर कई जगह पर ऐसे स्लम लोकेलिटीज़ है, वहाँ पर चाहे वो जियागुड़ा हल्का हो या कारवान हो या गोलकुंडा हो या हकीम पेट हो या मोहम्मदी लैन, उन तमाम इलाके जात के अंदर आज पिछले 1 महीने से मैं कई मरतबा वाटरवर्क्स के जीएम सीजीएम डायरेक्टर ऑपरेशन को भी इत्तला किया कि कई इलाके जात के अंदर पोल्यूशन का पानी आ रहा है, मगर इन तमाम की वजह यह है कि जो सेक्शन मैनेजर ना होने की वजह से ये कई कंप्लेंट अटेंड नहीं कर सक रहे। और दूसरी बात स्पीकर साहब, जो पिछले कई महीनों से मेरे हल्के कारवान के अंदर और कई जगह पर जो एयरटेक गाड़ी होती है, कहीं ओवरफ्लो होने की वजह से एयरटेक गाड़ी जाकर वहां पर अटेंड कर सकती, मगर आज वो एयरटेक गाड़ियां जो पिछले कई सालों से चल रहे थे, वो 10 साल मुकम्मल होने के बाद से उन तमाम एयरटेक गाड़ियों को निकाल दिया गया। और एयरटेक गाड़ी ना होने की वजह से कई जगह पर पोल्यूशन और ख़ास तौर पर मेन रोडों पर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उन तमाम जगहों पर आपको ख़ास तौर से ये बताना चाह रहा हूँ। और तीसरी बात ये स्पीकर साहब, कि आने वाला 1 महीने के अंदर जो रमज़ान का महीना है, और उस रमज़ान के महीने के अंदर अगर ये गंदा पानी, पोल्यूशन का पानी पिलाने से मैं समझता हूँ रोज़दारों को और आवाम को भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज से 20 दिन पहले, 20 दिन में आने वाला रमज़ान का महीना है। उस रमज़ान के महीने के अंदर आप देखते होंगे कई मसाजिद के पास, कई मेन रोडों के ऊपर जो जीएचएमसी की जानिब से जो सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो दीगर कंपनियां वहां पर लेबर ना होने की वजह से, लारिश ना होने की वजह से जो गार्बेज को लिफ्ट नहीं कर सक रहे हैं, आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ स्पीकर साहब। मैं शुक्रिया। खुदा। याकूबपुरा के मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुतालबा किया कि मौसम बरसात से कबल मैनहोल की सफाई की जाए। शदीद बारिश की वजह से हालात खराब हो जाते हैं। स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है कि आने वाला सीजन जो है वो रेनी सीजन रहता सर। आज से 4 साल पहले एक तूफानी बारिश आई थी, हेवी रेन हुई थी सर, जिसके अंदर ओल्ड सिटी काफ़ी जगह के ऊपर ओल्ड सिटी में 10-10, 15-15 फीट पानी भी आ गया था सर, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूबपुरा भी है। ये एक्चुअली ये पानी जो आने की रीज़न भी ये है सर कि प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं होने की तरफ से आया था। जैसा चंद्रायन गुट्टे के अंदर पानी आया तो हमारे पार्टी फ्लोर लीडर ने काफ़ी लोगों के बिजनेसेस जो भी ख़त्म हो गए थे उनको रीएस्टैब्लिश कराया। कोई ऑटो वालों के ऑटो ख़राब हो गए थे, उसको ऑटो बना कर दिया, कैब्स जो थे वो बना कर दिया, उसके अलावा घर के आर्टिकल्स भी सब करके दिया सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर, अगर फ़र्ज़ करिए हेवी रेन आती है तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है साहब। तो और एक चीज़ ये है सर कि अगर आप प्रॉपर डिसिल्टिंग कर देंगे तो मैं समझता हूं अगर हेवी रेन भी आएगी तो काफ़ी सहूलत होगी सर। मेरे पास में एक मुर्गी नाला जाता है जो याकूबपुरा स्टेशन के पास में है सर, वहां पर 3 बंड है, 3 बंड में 2 बंड पूरे फुल हो गए सर, 1 बंड वैसे ही चल रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि पूरे के पूरे बंड्स क्लियर होना सर। और गंगानगर नाले का काम चल रहा सर, गंगानगर नाले का काम को बरसात से पहले, रेनी सीजन से पहले कंप्लीट करना सर। डबिलपुरा नाला है सर, उसको भी रेनी सीजन से पहले कंप्लीट करना बेइंतहा जरूरी है सर। और जितने भी लो लेइंग एरिया है सर, वहां पर प्रॉपर डिसिल्टिंग होना बहुत जरूरी है सर। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह ख्वाहिश करना चाहता हूं कि अब की मर्तबा हैदराबाद में बोट्स चलने मत दीजिए सर। ये शहर बहुत खूबसूरत शहर है सर, इसको आपको लाज रखना है। मुझे ये मौका देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने कहा है कि माह रमज़ान के महीने में बरक़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए बरक़ी सरबराही में खलल पैदा ना हो, इसके लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। अली जनाब स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे
यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं आपकी जानिब से सीएम साहब को इस बात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि माह रमज़ान के लिए अभी 1 महीना भी बाकी नहीं है, रमज़ान का महीना आ रहा है। आज तमाम ट्रांसफार्मर्स को एनहांस करने की ज़रूरत है। रमज़ान में करंट ज़्यादा जलता है और पावर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर से करंट अगर चले आता है तो रोज़दारों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि समर में रमज़ान आ रहा है। और तमाम ट्रांसफार्मर्स को मेंटेनेंस जल्द से जल्द करवाइए और केबल्स का वर्क करवाइए, लक्स का वर्क कराइए और HRC का कराइए, ताकि रोज़दारों को तकलीफ़ ना हो। शहर हैदराबाद के तमाम ट्रांसफार्मर्स को करवाइए एनहांसमेंट। ऐवान असेंबली में नए अरकान को मौका देने के मकसद से वक्फे सिफर के साथ इजलास की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। अरकान के मसाइल एक तरफ थे, पूरे ऐवान की तवज्जो का मरकज़ वज़ीर कोमटिरेड्डी बने रहे। हस्बी रिवायत अरकान सवाल करने के बाद वज़ीर को सिर्फ कहना होता है कि उनके सवाल को नोट कर लिया गया है, बाद में अरकान को तहरीरी जवाब दिया जाता है। लेकिन कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस रिवायत को बदल दिया। इन्होंने हर रुकन असेंबली के सवाल का जवाब देते हुए खुद को 0 ओवर के हीरो की तरह पेश किया और ये बावर कराने की कोशिश की है कि वो सीएम ओहदे के लिए मौजू हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जनाब साहब, MLA साहब बोले सो लिख लिए साहब। वो RTC कंसर्न RTC MD का और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को आपका मसले के बारे में उसको भेजेंगे, जरूर उस पर ऊपर एक्शन लेंगे। नोट करके ऑनरेबल CM साहब को भेज देंगे साहब। ऑनरेबल CM साहब का परमिशन लेके और आपसे डिस्कस करेंगे साहब। जनाब MLA साहब बोले जैसे MD वाटर वर्क्स को रमजान का महीना है, वो इमीडिएटली वो पोल्यूटेड वाटर पानी आ रहा बोल के बोले, उसके बारे में भी नोट कर दिया साहब। उसको इंस्ट्रक्शन देते उसको रमजान के महीने नहीं, बाद में भी अच्छा पानी सहूलत का वो इंतजाम करेंगे साहब। जनाब जो MLA साहब बोले थे वो नोट कर लिए साहब। परसों में हमारा CM साहब असेंबली सेशन के पास पूरा सिटी का MLA साहब मीटिंग लगा रहे। हमारा इंचार्ज मिनिस्टर जो पोन्नम प्रभाकर के साथ मीटिंग करके वो करंट का इश्यू हो, पानी का मसला हो, सब जल्दी से जल्दी। इसके बाद रमजान अभी 1 महीना टाइम है, हमारा इंचार्ज मिनिस्टर हैदराबाद जल्दी से मीट करेंगे, पूरा जो इंतजाम करेंगे अच्छे से इंतजाम करेंगे। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने सदर नशीन स्टेट वक्फ बोर्ड की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वज़ीर आला के रेवंत रेड्डी ने सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को चेयरमैन की हैसियत से तकर्रुर किया है। अलावाज़ी रेवंत रेड्डी ने IAS ओहदेदार आयशा मसरत खानम को सेक्रेटरी टिमरीज की हैसियत से मुकर्रर किया है। बोर्ड मेंबर्स ने अजमतुल्लाह हुसैनी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन, बोर्ड मेंबर्स, स्टाफ, वक्फ बोर्ड के अलावा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी मौजूद थे। अदल व इंसाफ के बगैर जमहूरियत बेमाना है। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में अदल व इंसाफ की अहमियत पर सिटीजन्स लीगल एकेडमी ने इतवार 18 फरवरी को एक कौमी सेमिनार का एहतमाम किया है। नेहरू ऑडिटोरियम, मदीना एजुकेशन सेंटर, नामपल्ली में 11 बजे दिन मुल्क के सरकर्दा कानून दां व जहदकार प्रशांत भूषण इस सेमिनार में कलीदी खुतबा देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस चंद्र कुमार इससे खिताब करेंगे। एकेडमी के सदर नशीन मिर्जा यूसुफ बेग और तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक रुकन डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन कादरी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया है कि जिस तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत बिलखुसूस मुतनाज़ा मौज़ूआत पर अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी व जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सूदमंद हैं या नहीं, इस पर इस सेमिनार में बहस होगी। इन्होंने अवाम के तमाम तबक़ात से इस सेमिनार में शिरकत की अपील की। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में हल्क़े असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदे रुकन बलदिया मल्लेपल्ली डिवीज़न ज़फ़र खान ने महकमा आबरसानी की DGM सरिता के साथ एक इजलास मुनक्किद किया।
इजलास में सीवरेज और आलूदा पीने के पानी के मसाइल पर बात की गई। इन्होंने अहदेदारों से मसाइल की आजिलाना यकसोई का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिस इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा महकमे आबरसानी के मैनेजर नदीम भी मौजूद थे। IIT हैदराबाद के तालिब इल्म शेख मुजम्मिल अहमद की हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से मौत हो गई। मुतवफ़ी नौजवान के अहल खाना जो कि टोली चौकी में मुकीम हैं को जुमा के रोज़ कनाडा में इनके दोस्त की तरफ से मौत के बारे में कॉल मौसूल हुई। बताया गया है कि शेख मुजम्मिल अहमद दिसंबर 2022 से कनाडा में मास्टर्स कर रहे थे और गुज़िश्ता एक हफ्ते से वायरल बुखार में मुब्तला थे। जुमा को उनके वालिद शेख मुजफ्फर अहमद समेत अहल खाना को कनाडा में उनके दोस्त का फ़ोन आया कि वो हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वज़ीर बराए उमूर ख़ारजा हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की गई है कि वो इटावा में हिंदुस्तान के हाई कमीशन और टोरंटो कनाडा में हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल से कहे कि वो कुंबे तक पहुँचें और उनकी मैयत को वतन वापस भेजने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करें। हैदराबाद से मुतासरा के भतीजे ने भी वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त लिखा है जिसमें उनसे इस मामले में मदाखलत की अपील की गई है। खबर सुनकर इनके वालिदैन और पूरा ख़ानदान सदमे में हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स व सरगर्म कारकुनों के हमरा मरहूम लड़के के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। इस दौरान सदर मजलिस ने भी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राबता करते हुए लड़के की मैयत को वतन वापस भेजने के इंतज़ामात करवाने की अपील की है। रुकन बल्दिया रमसपुरा डिवीज़न मोहम्मद कादर ने माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र अपने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने 22 करोड़ रुपए की लागत से तौसी किए जाने वाले नाले के कामों का जायज़ा लिया। इन्होंने बताया कि सदर मजलिस व रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की नुमाइंदगी पर ये काम मंजूर किए गए हैं। इन्होंने बताया कि नाले में एक पीने के पानी की बड़ी लाइन रुकावट बनने की वजह से काम में ताख़ीर हुई। अब इस बड़ी लाइन को हटा दिया गया है जिसकी वजह से नाले के कामों को जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा मुकामी मजलिस के जिम्मेदारान मौजूद रहे। पुलिस ने कस्बा ज्वेलर्स अकबरबाग में चारशंबे को पेश आई डकैती के तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूका मालियत 24 लाख रुपए जब्त कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ ईस्ट जोन डी जानकी IPS की निगरानी में कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम और चादरघाट पुलिस ने मिलकर जुर्म के 16 घंटों के अंदर मुलजिमीन को मसरूका माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिमीन में 2 का उत्तर प्रदेश और 1 का महाराष्ट्र से ताल्लुक बताया गया है और ये तीनों शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम रहकर रैपिडो चलाते हैं। मुलजिम नंबर 1 नाजिम अजीज मुंबई महाराष्ट्र का मुतवत्तिन है। मुलजिम नंबर 2 शौकत राइनी और मुलजिम नंबर 3 वारिस जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मुतवत्तिन हैं। शहर में रैपिडो चलाते हुए गुजर बसर किया करते हैं। मुलजिम नंबर 1 कुछ अरसा कबल एक मुसाफिर को छोड़कर अकबरबाग आया था। वहां इसने कस्बा ज्वेलर्स के काउंटर पर एक ही फर्द को देखकर इस ज्वेलर्स की दुकान को लूटने का मंसूबा बनाया। उसने अपने साथ मुलजिम नंबर 2 और मुलजिम नंबर 3 को भी शामिल कर लिया। ये तीनों मंगल को जुर्म के इर्तिकाब के लिए अकबरबाग पहुंचे। दुकान पर गाहक मौजूद थे। काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन गाहक होने की वजह से इन्होंने दूसरे दिन दोपहर के वक्त वहां पहुंचे जहां काउंटर पर एक लड़का मौजूद था। मौका पाकर मुलजिम नंबर 1 पहले दाखिल हुआ। इसके साथ ही मुलजिम नंबर 2, 3 दाखिल हो गए। काउंटर पर बैठे शेखुर्रहमान को चाकू की नोक पर काबू कर लिया और इसको जख्मी कर दिया। इसके बाद वो माल मसरूका लेकर चलते बने। पुलिस ने CCTV कैमरों के जरिए उनकी नक़्ल हरकत का मुशाहिदा किया और उन्हें माल मसरूका के साथ गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 330.84 ग्राम के सोने के जेवरात, 124.19 ग्राम के चांदी के जेवरात, 2 टू व्हीलर्स, 2 मोबाइल फ़ोन और 2 फेस मास्क जब्त कर लिए गए। एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, एडिशनल
DCP साउथ ईस्ट जोन जी मनोहर, ACP मलकपेट जोन जी श्याम सुंदर और दूसरे अहदेदार व अमले के अरकान ने इस केस में मुआविनत की। उनको किस्वा ज्वेलर्स अकबरबाग में एक रॉबरी रिपोर्ट हुआ। उसमें 3 जने आके वो बच्चा था ओनर का लड़का, उसको चाकू से डरा के इंजरी करके पूरा 330 ग्राम्स गोल्ड और 125 ग्राम सिल्वर लेके गए थे। ये टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से तीनों तक हम लोग पहुंच सके। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स और चादरघाट क्राइम टीम दोनों मिलके ये केस डिटेक्ट करे। इसमें तीनों नाजिम अजीज़ कोटाडिया, शौकत रानी और वारिस, ये तीनों भी रैपिडो राइडर्स हैं। ये नाजिम के पास 4 बाइक्स है। इसने इन लोगों को, वारिस और शौकत को एक बार बोला इधर एक ज्वेलरी शॉप है, हम लोग इसमें रॉबरी करेंगे, पैसे मिलेंगे बोल के। ये तीनों भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, प्रीवियस हिस्ट्री कुछ नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री कुछ नहीं है। अभी तीनों को आज सुबह में हम लोग पकड़े और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम इसमें काम करे थे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। समाजी, सियासी व मुआशी घर घर सर्वे कराने की करारदाद ऐवान में मंजूर। गुज़िश्ता जामे सर्वे की रिपोर्ट एक खानदान के हाथ में, हम इसको मंजर आम पर लाएंगे। वज़ीर आला का ऐवान में ऐलान। करारदाद नहीं, बिल पेश करें तभी ये मुमकिन है, वरना इसकी कोई अहमियत नहीं। ऐवान में अपोजिशन जमातों ने की करारदाद की तायीद। हम किसी के दुम छल्ले बनकर नहीं रहेंगे। नहरों से लेकर हर एक को आजमाया, मुसलमान जद्दोजहद करके अपना हक हासिल करेंगे। अकबर अवैसी की जज्बाती तकरीर। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी वक्फ बोर्ड के नए सदर नशीन, मुत्तफ़िक़ा इंतखाब के बाद जायजा हासिल कर लिया। और अकबरबाग डकैती केस के तीनों मुलज़िमीन गिरफ्तार, 24 लाख रुपए मालियत के जेवरात जब्त, अंदरून चंद घंटे पुलिस की कार्रवाई।
इसी के साथ खबरनामा अख्ताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।